This is the chapter what we are going to do today, the exercise 5.3. Before I speak about exercise 5.3, I'd also like to tell you guys about the few of the other element which are very much required now. So let us understand that part also. Just wait a minute. Okay. Now before we start, let me give you some of the tips for 5.3 exercise. It's very simple. What I wanted to say is that firstly, let's say I have a I have a coin. Okay, when a coin is tossed. Okay, all of I hope all of you know about the coin. If required, let me show you coin. Okay, so let's say this is the coin, Indian coin, 10 rupees coin. This is head, and the other one is the tail part, right? So we have when a coin is tossed, what is the outcome? What are the possible outcome? So the possible outcome I'll write as head and tail. These are my possible outcome. Head and tail are possible outcome. Okay, so there are two outcomes, या तो head आएगा या तो tail आएगा. उसको ही बोलते हैं sample. S माना sample space. When a coin is tossed, S is equal to माना sample space is equal to head and tail. So अपना जो n of s है, मतलब number of s would be, there are count this, how many numbers are there, 1 2, मतलब दो outcome है. कितने possible outcome है, how many possible outcomes are there? So the answer is 2. So we got the value of n of s as 2. Okay, if I say in this event, if I define a as, अगर मेरे को कुछ event निकालना है कि getting head, when getting head when a coin is tossed. Okay, getting head when a coin is tossed. तो आंसर क्या आएगा ये के अंदर, सिर्फ हेड के अंदर. ये तो हमारा दो आउटकम है, या तो हेड या तो टेल. तो आउटकम आई नीड टू गेट ओनली हेड, तो सिर्फ हेड वाला मैं लिखूंगा. आई जस्ट राइट हेड. एंड व्हाट इज द एन ऑफ ए? एन ऑफ ए का मतलब है सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस तो सिर्फ एक है. इफ यू काउंट एक ही आउटकम है, दैट इज वन, दैट्स इट. सो ये पूरा 5.3 एक्सरसाइज में यही करना है. दे आर बीन आस्किंग अबाउट व्हाट इज योर सैंपल स्पेस, व्हाट इज योर, मतलब एक एक्सपेरिमेंट जब करते हो, जैसे कि एक कॉइन उड़ाया, तो उस एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस क्या है, हेड एंड टेल, और उसके टोटल आउटकम कितने काउंट करके देखो. और कुछ इवेंट दिया रहेगा, जैसे कि एक इवेंट दिया कि गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस. तो गेटिंग हेड मतलब एक तो एक ही हेड है, एन ऑफ ए इक्वल टू 1. अभी दूसरा कंडीशन क्या है, लेट्स से सेकंड एग्जांपल. I expect you all to write in the notes before we begin the exercise. So write down this also. Okay. Oh, sorry. I don't want to explore. Let us understand the example part. So this is the first example. Example 2 देखते हैं. ऊपर को मैं example 1 करता हूँ. Example 1. Okay. When a coin is tossed. अभी example 2 में सोचते हैं. Let's say when a die is rolled. Okay. जब एक die सब लोग जानते हो. I hope dice, जो आप लोग देखो, ये जो है डायग्राम, राइट, यू ऑल नो दिस कॉल्ड एज अ डाइस. सो व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, सबको पता है इसके अंदर नंबर्स होता है. क्या क्या नंबर होता है? डॉट्स बेसिकली. 1 2 3 4 5 and 6. So these are the possible outcome of when a die is rolled. So सबसे पहला मैंने एक डाई रोल किया है, तो ये इसके आउटकम है. व्हाट आर इज एन ऑफ एस? एन ऑफ एस के अंदर कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6. क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल देखो कितने, कॉमा कॉमा कॉमा, कितने नंबर यहाँ पर आए हैं. सो इफ यू काउंट दैट कितने नंबर आए हैं, द आंसर इज एन ऑफ एस इज 6. राइट. सो दिस इज व्हाट द सैंपल स्पेस व्हेन अ डाई इज रोल्ड, एंड दिस इज द सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट. अगर मैंने एक इवेंट डिफाइन किया ए करके, लेट इवेंट ए बी गेटिंग नंबर greater than, oh sorry, getting number greater than 3, समझो.
ग्रेटर देन 3 के अंदर कौन से नंबर आता है? अच्छा, जब भी ये लिखते हो तो उसको हमेशा इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट में लिखना है. So what are the number which are greater than 3? You can see here 4, 5, 6. So write down that 4, 5, 6. ठीक है, that's it. ऐसे ही अलग अलग all the question we will see जो भी in the textbook है. So let's solve the question now. The first question says, चलो let's now start with the exercise. I hope you have understood exercise 5.3 का brief idea. In exercise 5.3 what you are expected to do is that you are supposed to find, सबसे पहली बात तो जो experiment बोला है उसके possible outcome निकालो. जैसा एक coin उड़ाया तो possible outcome क्या है? Head and tail. उसके number लिखो. और जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा एक उसका सब पार्ट क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे कि गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस. हेड तो एक ही बार आया, हेड एच, तो वो सिर्फ एक बार लिख दिया, एन ऑफ ए वन आया. और यहाँ पर जैसे लिखा व्हेन अ डाई इज रोल्ड, डाई जब रोल करोगे तो सैंपल स्पेस जो है 1 2 3 4 5 6 है. ये उसके सैंपल्स मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम है. एक डाई रोल करने पर ये सब नंबर आ सकता है और उसके सैंपल काउंट निकाल लिया. एंड देन एक इवेंट रहेगा उसका हमें गेटिंग, जैसे कि ये इवेंट रहेगा गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3. सो the number which are greater than 3 are nothing but 4, 5, 6. That's it, right? So what simple technique we are going to do is that's what we are going to do now. The exercise 5.3, read the question, write sample space s and number of sample point n of s. मतलब जो भी इवेंट है उसका, जो भी क्वेश्चन दिया है उसका सैंपल स्पेस लिखो और उसका सैंपल पॉइंट लिखो. उसके बाद जो भी आपको ए बी सी करके तीन उसके इवेंट दिया, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट बी, वो तीनों इवेंट के हमें एन ऑफ ए निकालना है बस. वेरी सिंपल क्वेश्चन जो हमने किया है. So let us start with this question. First question. Okay, let me write. सबसे पहली बात exercise 5.3. Okay, let me underline it and let me bring it to the middle. Okay, 5.3 का अभी हमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है. फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है. फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है. So the first question is that, let us understand the first question. When a die is rolled, okay, let me remove the underline part. When a die is rolled, सबसे पहली बात बताओ सैंपल स्पेस क्या रहेगा. अभी तुम्हें पता है सैंपल स्पेस मतलब एक डाई रोल करते हो तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकता है. 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. यही था तुम्हारा पहला क्वेश्चन. सैंपल स्पेस लिखो. एक बार सैंपल स्पेस लिखा, एक मिनट, लेट मी ब्रिंग टू द नेक्स्ट पेज. ओके, सो this was the first question. Yeah, when a die is rolled, when a die is rolled, sample space, that is s equal to 1 2 3 4 5 s. Therefore sample point माना n of s. n of s गिनो इधर कितने नंबर है, कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल काउंट 6 है. राइट. अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेंट ए नंबर अकर्ड ऑन द अपर फेस, इवन नंबर ऑन द अपर फेस. वेरी सिंपल क्वेश्चन. इवेंट ए करके है even number on the upper face, even number on the upper face. Okay, now tell me what are the even number on the upper face. Even number on the upper face मतलब ये आपके total possible outcomes है. Now in this what are that number which are even. So you all know even मतलब simple logic यही है जो 2 के टेबल में आता है, या फिर any number जिसके यूनिट डिजिट में 2 4 6 8 0 आता है. एक एक टिप्स रख लो यहाँ पर ही. ओके, लेट अस हैव अ टिप्स. टिप्स क्या है? टिप्स, let me write in some other color the tips. uh, yeah, note even number are those whose unit digits are either 0 2 4 6 8. तो ये टेक्निक है. और एकदम सिंपल वे में, और सिंपली if it is divisible by 2, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आता है. divisible by 2, simple word. Okay, this is what your
इवन नंबर इज। अभी हम लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट मोर अबाउट दिस। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द अदर पार्ट। तो अभी बताओ, इसके अंदर देख के आपको क्या लग रहा है? तो सिंपल सी बात है, यू कैन सी हियर 2 4 6, यहाँ पर देखो 2 4 6 तीन नंबर है, वो तीन नंबर को मैंने लिखा। तो व्हाट इज एन ऑफ ए हियर? एन ऑफ ए मतलब सैंपल पॉइंट, एक दो, यू नो, यहाँ पर 1 2 and 3। so the answer is n of a is 3। now very simple, I hope you have understood the part। so जैसा मैंने एक बार रिपीट करता हूँ। the first question was when a die is rolled। जब die roll होता है, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 सैंपल पॉइंट्स, यू नो, इसके अंदर से काउंट करना है। एंड ए करके इवेंट हमने क्वेश्चन पूछा था उन लोग ने, इवन नंबर ऑन द अपर पेज। अपर पेज में इवन नंबर आना चाहिए। और यू ऑल नो व्हाट इज एन इवन नंबर। इवन नंबर इज नथिंग बट जिसका हुज यूनिट डिजिट्स आर आइदर 0 2 4 6 8। और सिंपली इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 है तो इट्स अ इवन नंबर। तो यहाँ पर देखो नंबर 2 4 6, देर आर थ्री नंबर्स विच आर लाइक डिविजिबल बाय 2 है। तो ये अपने सैंपल पॉइंट्स हो गए, बस यही करना था। अपना ये पार्ट हो गया। अभी बी पार्ट देखते हैं। लेट अस सी द क्वेश्चन। ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। अच्छा, इवन का उल्टा ऑड नंबर, मतलब जो इवन नंबर है उसको छोड़ दो तो ऑड नंबर बचता है। ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। व्हाट आर ऑड नंबर ऑन द अपर फेस? अपर फेस में ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड नंबर मतलब 1 3 and 5, क्योंकि ये जो है 2 4 6 को छोड़ दो, रिमेनिंग मतलब ये जो नंबर है जो टू के टेबल में नहीं आता है, अदर देन टू के टेबल में आने वाले, उसको ऑड नंबर कंसिडर किया जाता है। सो द आंसर इज बी इक्वल टू, सॉरी, एन ऑफ बी। अभी हमें सैंपल पॉइंट लिखना है एन ऑफ बी का। एन ऑफ बी का कितना आएगा? यस, यू आर राइट, दैट इज 3 1 2 3। ओके, नाउ लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। प्राइम नंबर ऑन द अपर पेज। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सी पार्ट, प्राइम नंबर ऑन द अपर पेज। ओके, व्हाट इज द प्राइम नंबर? सबको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? चलो भाई एक नोट लिख लेते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है। लेट अस राइट डाउन दैट पार्ट, व्हाट इज द प्राइम नंबर इज। एक कलर चेंज करता हूँ। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स आर क्या होते हैं बेसिकली? प्राइम नंबर्स आर दोस विच आर डिविजिबल बाय इट्स ओन टेबल। मतलब जिसके डिवाइजर्स है इट्स ओन टेबल, सिंपल। अच्छा, मैंने बोलता इट्स ओन टेबल मतलब इट्स ओन टेबल इन सिंपल वर्ड, whose divisors are 1 comma that number itself। माना क्या? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अच्छा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये तुम लोगों ने 600 से सुनता है। 1 प्राइम भी नहीं है तो स्टार्ट विथ 2, क्योंकि 2 और कोई टेबल में जाता नहीं। 3 3 1 3, इसके अलावा 3 कोई दूसरे टेबल में आता नहीं। 5, यस, क्योंकि 4 तो नहीं है, 4 तो 2 के ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, तो वो तो आएगा ही नहीं। तो 5 है, और उसके बाद 7 है। 7 के बाद 9 नहीं आता, क्योंकि 3 3 9 जाता है, डायरेक्टली 11 आता है। देन 13 आता है। 15 नहीं आता बिकॉज 3 5 15। 17 आता है, 19 आता है। लाइकवाइज वो जाता रहता है ऑफ प्राइम नंबर। सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर। अभी बताओ ये इस सिचुएशन में कहाँ गया? अभी ये बताओ यहाँ पर c इज इक्वल टू क्या बनेगा? तो इफ आई टॉक अबाउट दिस पार्ट, c इक्वल टू जो है क्या बनेगा? प्राइम नंबर है। इस पे देखो 1, अपना सैंपल स्पेस किधर है? यहाँ पर है। 1 2 3 4 5, इसमें प्राइम नंबर एक इधर, एक 2 है, 3 है और 5 है, राइट? इससे चेक करो मैंने जो नंबर बोला था। 2 है, 5 है, और सॉरी 2 है, 3 है एंड 5 है। दिस आर द थ्री नंबर विच आर देयर। अब लिखो एन ऑफ सी क्या होगा? एन ऑफ सी विल बी, किनके देखो, एन ऑफ सी विल बी 3। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड आई होप दैट यू गाइस हैव अंडरस्टूड। ओके, so this what the expected in question number 1। now let us talk about question number 2। question number 2 क्या है देखते हैं। टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। जब टू डाइस रोल है, अभी देखो यही पार्ट ले लो, ये दिख रहा है, ये 2 डाई है। व्हाट वुड बी द, ये देखो पहला डाई में यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है। ऐसा भी हो सकता है इसमें पहला डाई में 1, इधर 1, इधर इधर 1 ही रखो, इसको चेंज करते जाओ। 2 3 4 5 6, और अभी ये 1 को 2 बना दो। 2 1 2 3 4 5 6, अभी इसको 3 बनाओ और इसको चेंज करते जाओ। 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में 6 आ जाएगा। ये 6 1 6 2 और लास्ट में 6 6 तक लेके जाएगा। तो एक सिंपल ट्रिक मैं क्या बताऊंगा,
जो लिखने का ट्रिक्स है दैट वुड बी सेकंड क्वेश्चन के अंदर. ओके, योर एस व्हेन टू डाइस आर रोल्ड. जब टू डाइस रोल्ड है तब आपका जो सैंपल स्पेस है, उसका एक टेक्निक है, सिंपल होना है. मैं अभी आई हैव ऑलरेडी written this part somewhere. Just let me take that away so that I don't have to write it again, entire part. Okay, let me copy and paste it there so that it become easy. Yeah, it's here. Okay, let me copy paste. Yeah, over here it is there. Yesterday I took for some people the same session. We completed it till 5.4. Just repeating that part. So so what we got sample space when two dice are rolled. एक सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा, जब टू डाइस आर रोल्ड है तो नंबर्स जो आ सकता है, देखो ये अपना लेफ्ट एंड राइट, ये अपना दो डाइस है, फर्स्ट डाई सेकंड डाई. जैसे कि अभी ये इमेज में जो तुम देख रहे हो, व्हाट इज दिस इमेज यू आर सेइंग, पहला डाई में भी सिक्स, दूसरा डाई में भी सिक्स. You can see here first die 6, second die 6, but I will start with all the possible outcome, मतलब पूरा. तो उसके लिए एक सिंपल टेक्निक है, फर्स्ट स्टार्ट विथ 1 ईयर एंड चेंज दिस नंबर 1 2 3 4 5 6. सेम चीज यहाँ पर, 1 will become 2 and start with 2, and this number just update 1 2 3 4 5 6. Here also start with 3, then keep on upgrading it 1 2 3 4 5 6. Likewise it will go, ये जो 1 है इसको चेंज करते जाओ 1 2 3 4 5 6. फिर ये तो हमेशा, देखो सबसे पहला एक नंबर को फिक्स करो लेफ्ट का, इसको चेंज करते जाओ, फर्स्ट डिजिट को फिक्स करो, सेकंड डिजिट चेंज करते जाओ. अभी अगेन सेकंड डिजिट को चेंज करो, वापस पूरा सेकंड डिजिट को 1 2 3 4 5 6 लिखो, ऐसे अप टू 6 तक लेके जाओ. फर्स्ट डिजिट चेंज करो, अप टू 6 तक लेके जाओ. ये तुम्हारा टोटल एन ऑफ एस है, एंड दिस इज इक्वल टू 36. देयर आर टोटल 36 पॉसिबल आउटकम ऑफ दिस. ओके, नाउ या ये अपने आउटकम है टोटल. अब पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द क्वेश्चन. द सम ऑन द upper digit on upper face is multiple of 6. The sum of the digit on the upper face is multiple of 6. तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन क्या बोला है, sum on the upper digit is multiple of 6, multiple of 6, ये हमें लिखना है. तो सम ऑन द अपर डिजिट का मतलब क्या है, सपोज ये दो नंबर है 1 1 1 2 1 3 1 4, ऑल दिस आर नंबर. तो ये दो नंबर है, लाइक दो डाई के ऊपर, जैसे कि ये डाई था, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है. तो ये दोनों के ऊपर जो नंबर आया, वट एवर द नंबर ऑन द अपर पेज, add both the numbers. Like here it is 6, here also 6. 6 plus 6 is 12. So likewise you add all the number, like ये 1 plus 1 2 होता है, 1 plus 2 3 होता है, 1 plus 3 4 होता है. लेकिन वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए. मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब क्या है, नोट लिख के लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ 6. तो सिंपल वर्ड में मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब है जो 6 का टेबल है, जो 6 का टेबल है, 6 का टेबल क्या होता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, डॉट 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 डॉट, राइट. तो ये टेबल है. बट यहाँ पर देखो दो डाई, सबसे बिग नंबर ही 6,6 12 है. सो देर इज नो नीड ऑफ, मतलब यू डोंट हैव टू लुक फॉर द नंबर ग्रेटर देन 12. लाइक जो यहाँ पर जो डाइज है, अगर सबसे मिनिमम नंबर 1,1 है, 1,1 मतलब 1 प्लस 1 2 होता है, 6,6 मतलब 6 प्लस 6 12 होता है. तो द मिनिमम नंबर इज 6 एंड द मैक्सिमम नंबर इज 12. तो हमें ये देखना है विच आर दोस नंबर, हमें ये देखना है विच आर दोस नंबर ओवर हियर, जिसको हम ऐड करेंगे, दो नंबर को ऐड करेंगे तो 6 बनता है और 12 बनता है. 12 का तो एक ही पॉसिबल आउटकम है जो कि ये है, दिस इज द 12 का पॉसिबल आउटकम. 6 का कहाँ पर है, ये देखो 6 का, देखो स्टार्ट कहाँ से आ रहा है. पहला ये देखो कि पहला फर्स्ट टाइम 6 कहाँ पर बन रहा है, ये देखो 1,5 इज 6, 1,5 6. एक बार ये मिल गया ना, मैं तुम लोग को एक शॉर्टकट बताऊंगा, सिर्फ ये सीधा डायगोनल ऐसा देखते जाओ, ये देखो ये सीधा ऐसा देखते जाओ, तो ये पूरा 6 वाला ही रहेगा. देखो 1 5 6 2 4 6 3 3 6 4 2 6 5 1 6, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं रहेगा 6. बस इतना ही, 1 2 3 4 5 जो नंबर आया, ये 5 का 5 नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5, राइट डाउन दिस नंबर.
ए इज इक्वल टू वट एवर, पहला सम ऑफ सिक्स का मतलब 1, 5, मतलब 1 + 5 = 6, 2, 4, 2 + 4 = 6, 3, 3 दैट इज 6। यू कैन मतलब वहां पर देख के भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लोगों को पता है 4 को कितना ऐड करोगे तो 6 बनता है, 5 को कितना ऐड करोगे तो 6 बनता है, सिंपल सी बात है। और 12 के लिए दोनों 6, 6। राइट, नाउ कैलकुलेट एन ऑफ ए ऑफ दिस, वेरी सिंपल। गिनो कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इवन यहाँ पर जो एस था इसमें भी 136 नंबर थे। ओके, एक शॉर्टकट ये बताऊंगा, यहाँ पर देखो 6 रो है, 6 कॉलम है, 6, 6 × 36, सिंपल वर्ड में ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, इवेंट बी, द सम ऑन द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। तो क्वेश्चन है, लेट मी, ओके, बी इज sum on the upper face is minimum, sorry, minimum 10। अच्छा, मिनिमम का मतलब क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। मिनिमम और एटलीस्ट दोनों का मतलब एक होता है, मतलब कम से कम जो बोलते हैं ना, इन सिम से मैं आई वर्ड राइट दैट कम से कम, सो दैट इट बिकम इजी फॉर यू। कम से कम, एटलीस्ट, या फिर फॉर एग्जाम्पल टू पास इन एग्जाम, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, टू पास इन एग्जाम यू नीड टू गेट मिनिमम और एटलीस्ट, दोनों का मतलब एक है, मिनिमम और एटलीस्ट 35 मार्क्स। राइट, तो इसका मतलब क्या है, पास होना है तो 35 मार्क्स लाना है, इसका मतलब 35 से ज्यादा, लाइक 40 भी अगर तो पास ही है ना। इसका मतलब ये है, उससे कम नहीं जा सकते, यू कैनॉट गो डाउन द लाइन, बट यू कैन गो अपसाइड, लाइक द आंसर शुड बी मिनिमम 35, मतलब 35, 36, 37, 38, डॉट 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 डॉट, ये सब, all these are 200, all these are passing criteria, right? तो सेम चीज यहाँ पर होएगा। अब सेम लॉजिक यहाँ पर डालेंगे, मिनिमम का मतलब मिनिमम सम, जो मिनिमम 10 होना चाहिए, मिनिमम 10 मतलब, तो हियर इन आवर केस let me take another color now so that it becomes easier for you। Here in our case, minimum 10 means, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम 10, 11 और 12, क्यों? क्योंकि डाई पे जो मैक्सिमम नंबर है वो 6,6 है, 6 और 6 12 होता है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता है। तो मैक्सिमम 12 तक जाएगा और 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो यही पार्ट हमें करना है। तो लेट अस कंटिन्यू दैट। सबसे पहला हम लोग ढूंढेंगे 10 को, ढूंढेंगे, लेट अस फाइंड आउट 10। 10 तो कहाँ पर है, अभी तो मेरे को लगता है डायरेक्टली तुम लोग ढूंढ सकते हो। पहली बात तो यहाँ देख लो, 1, 6 to 7 होता है, इसमें तो नहीं होगा, 10 आना चाहिए। 2, 6, 8 होता है, नहीं होता है। 3, 6, 9 होता है, नहीं होता है। लेकिन 4 और 6 क्या होता है, 10। तो हियर इज द स्टार्टिंग पॉइंट, 4, 6, और डायगोनल देखो यहाँ पर 4, 6, 5, 5, 6, 4, सिंपल वर्ड, 4, 6, 4, 6, ओके लेट मी per bracket, 4, 6, 5, 5, 5 एंड 6, 4, ये सब अपने पॉसिबल आउटकम ऑफ 10 हो गए। राइट, क्योंकि 4 + 6 10 है, 5 + 5 10 है, 6 + 4 10 है। नाउ थिंक अबाउट द 11, नंबर 11, जैसा मैंने बोला अपर भी, यहाँ से स्टार्ट होता है, देखो 5 + 6 11, बाकी कोई नंबर नहीं, बाकी सब छोटा है, 5, 5, 10 है, इधर से स्टार्ट होगा 5, 6, 11 और 6, 5, 11, बाकी ये नहीं, ये डायगनली मिलेगा आपको जो नंबर है। तो ये दो ही नंबर है, तो सिंपल लॉजिक मैंने बोला, अगर 5 से स्टार्ट होता है, 5 और 6 मिलकर 11 होता है, और 6 और 5 मिलकर 11 होता है, बस इसके अलावा और कोई 11 नहीं है उस अवेलेबल नंबर में से। और लास्ट इज 12, 12 का तो एक ही पॉसिबल है, दैट इज 6,6। राइट, so you got the n of b as equal to 6। ठीक है, this is what the second part is। now let us look at the third part, the same digit on both the upper page, very simple question, the same digit on the c part है, same digit on both the upper face,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? दोनों में सेम नंबर, जैसा कि ये जो है, आ गए वो डाइस वाला, यस, इधर देखो, इधर भी 6, इधर भी 6, सेम डिजिट, उसको बोलते हैं सेम डिजिट। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इन द सेम वे दिस पार्ट, लाइक अभी यहाँ देखो, कहाँ कहाँ पर सेम डिजिट है, वेर आर सेम डिजिट आर देयर, 1,1 सेम, 2,2 सेम, 3,3 सेम, 4,4 सेम, 5,5 सेम, 6,6 सेम, so all these are same digit, so this is the answer, one is 1,1, एक मिनट, 1,1, 1, 2,2 सेम डिजिट होना चाहिए, 3,3, 4,4, 5,5 and 6,6, so the answer is n of c is equal to 6. Okay, n of c is equal to 6. That's it. Done with the second question. Okay, two dice wala problem. Now let us understand the third question. Three coins are tossed simultaneously. Three coins are tossed simultaneously. Third question. Three coins are tossed simultaneously. Third question है. Question number 3. Let me color it different color so that easily समझे. Let me mark all the question in this color. These are the question. पहला question. Let us go up and color it all the questions. First question यहाँ पर है. Okay. Second question and third question already colored. Three coins are tossed simultaneously. Simple सी बात है. How? What do you mean by three coins are tossed simultaneously? So let's say three coins are tossed. Simple word. या फिर एक minute. You all know kind. So let us. I'll also explain because me is understand. So what is जब तीन coin उड़ाया? So you have three coins. समझो. Let me insert an image here. Draw कर लेते. Okay. Shape. Let us. I mean अभी मैं कुछ ये नहीं कर रहा हूँ. But एक, one, two, एक मिनट. तीन. फिर सेम साइज में कर लेंगे. तीन कॉइन है. These are three coins. Okay, this has head and tail. Okay, समझो ये तीन, ये head, ये तीन coins है. Okay, let us assume that these are three coins and एक, इसके ऊपर एक text भी डाल देते हैं. और we can do one thing, just a moment. I think that is more beneficial than anything. So can image, just select coin, head, tail. Okay, go for the Indian coin. ये रखो Indian is head and tail. हाँ, एक मिल गया. Is there a better image?
So you all know this is the coin, right? But मुझे सिर्फ 3 कॉइन लेना है, so I'll just say that 1 2 3, ये 3 कॉइन, बाकी कॉइन को छोड़ दो. If you want I can do a prop element. Okay, let's see. ठीक है, I guess you will be able to understand. कुछ दिख नहीं रहा है. So simple word में you have 3 coins. Don't consider this other coins, but just consider as you have only 3 coins. So what are your sample space? तो एक सिंपल में टेक्निक बताता हूँ. देयर आर टू वेज. एक तो है, पहली बात तो तीनों कॉइन में देखो 1 2 3 कॉइन है, तीनों कॉइन में हेड लिख लो. उसके बाद क्या करना है, जस्ट रिप्लेस द लास्ट हेड बाय टेल. रिप्लेस द लास्ट हेड बाय टेल. अब ये टेल को बीच में लेके जाओ, HTH. अब ये टेल को यहाँ लेके आओ, THH. मतलब इन सिंपल वर्ड में मैंने क्या किया, सबसे पहले तीनों हेड लिखा, उसके बाद इसको मैंने हेड को टेल से रिप्लेस किया, यहाँ पर आ गया. फिर बीच वाला को हेड को टेल से रिप्लेस किया, फिर फर्स्ट वाला को हेड से टेल से रिप्लेस किया. नाउ सिमिलर टू क्या करना है, सेम चीज. पहले लिखो टेल 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 टेल, तीनों टेल टेल टेल. अभी सिर्फ फर्स्ट वाला को, लास्ट वाला जो है उसको हेड बना दो, ये जो है हेड बना दो. और अभी बीच वाला को हेड बना दो, और HTT. तो दिस आर योर पॉसिबल आउटकम्स व्हेन यू टॉस 3 कॉइन्स. जब आप 3 कॉइन उड़ाते हो, पॉसिबल आउटकम. ओके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले के लेक्चर में बताया कि कैसा ये आउटकम आता है. एक डायरेक्ट शॉर्टकट देखना है तो 2 to 3, दैट इज 8 आउटकम विल बी देयर. वो कंसेप्ट मैंने बताया, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट अगेन नाउ. तो एस इज यू गॉट एन ऑफ एस इक्वल टू, एंड यू हैव अदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग दिस ऑल्सो, बट अभी फिलहाल के लिए वो नहीं देखेंगे. बट जस्ट मतलब एक टेबल फॉर्मेट में भी होता है, दैट विल आई हैड ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर. यू कैन लुक इनटू दैट, बट वी कैन ऑब्वियसली डू दैट पार्ट लेटर ऑन. ठीक है, तो अभी पॉसिबल आउटकम जो है, काउंट दिस. देयर आर 8 आउटकम, 1 2 3 4 5 6 7 8. so the total possible outcome is n of s equal to 8. Okay, now you got this. Now consider the question one by one. First question, condition for event A to get at least 2 head. मैंने ऑलरेडी आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन. लेट्स से पहला एक लिख देते A. टू गेट एटलीस्ट क्या था, 2 हेड ना, कहाँ गए, या एटलीस्ट 2 हेड. एटलीस्ट पुट अ स्पेस, एटलीस्ट 2 हेड. तो आउटकम क्या आएगा बताओ. एटलीस्ट का मतलब सबको पता है ना, मिनिमम. कम से कम 2, या 2 से ज्यादा मतलब 3, क्योंकि यहाँ पर जो है टोटल 3 कॉइन है. तो 2 हेड होगा या तो 3 हेड होगा. मतलब क्या, सिंपल वर्ड में, इधर 3 कॉइन है अपने, 1 2 3, राइट. ये तीनों कॉइन में समझो, एक में हेड है, दूसरे में हेड है, 2 हेड है. तो इसको बोलेंगे 2 हेड, और एक में टेल है. तो काउंट करो, इस पहले वाले में 3 हेड है, दूसरे वाले में 2 हेड है, तीसरे वाले में 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, और इसमें तो 0 हेड, एक भी हेड नहीं है. इधर एक हेड है, इधर एक हेड है, इधर एक हेड है. तो हमें वो सब लिखना है जिसके अंदर टू गेट मिनिमम, मिनिमम 2 हेड, 2 हेड या उससे ज्यादा, 2 या 3 हेड भी लिख सकते हैं. तो द आंसर इज, चलो पहला चाहिए तो 2 हेड वाला लिख लेते हैं. 2 हेड वाला कौन सा है, HST है. सॉरी, 2 हेड वाला HST है, HTH है, और THH है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और एक है 3 हेड वाला, राइट. दिस इज द 3 हेड, राइट. So this is the and to get at least 2 head, and this is the outcome. And I hope that you guys understood. क्योंकि at least का मतलब तुम्हें पता है. Second question है, condition for event B to get no head. Very simple question. To get no head. To get no head का मतलब क्या है? Let's say B event जो है, event B is to get no head. मतलब simple word में B के अंदर एक भी हेड नहीं है. एक भी हेड नहीं है मतलब क्या है? Look at this. एक भी हेड नहीं आना चाहिए, मतलब ये वाला केस. ऑल आर टेल, तीनों का तीनों कॉइन में टेल आया है. तो आंसर इज वेरी वेरी सिंपल, इट्स ओनली TTT. तो पॉसिबल आउटकम सिर्फ एन ऑफ बी, मतलब कितना होगा, सिर्फ. यस, यू आर राइट थिंकिंग, एन ऑफ बी इज 1. ओके. थर्ड क्वेश्चन, कंडीशन फॉर इवेंट सी टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन. टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन क्या आएगा,
सिंपल सी बात है। सेकंड कॉइन क्या है? बीच का कॉइन। ये देखो सिंपल वर्ड में, दिस इज व्हाट योर फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन। यू शुड गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन। तो जहां जहां पर बीच में हेड है, जैसा इधर बीच में हेड है, ये सेकंड कॉइन हेड है। ये सेकंड कॉइन, क्योंकि इधर टेल है, ये नहीं चलेगा। ये सेकंड कॉइन हेड है। एंड बस, एक, एक दो तीन चार, राइट। सो राइट डाउन दिस पार्ट, राइट डाउन दिस पार्ट, राइट डाउन दिस पार्ट। ओके, तो व्हाट आर यू हैव, एच एच एच, इसमें बीच में हेड है। और इसमें टी एच एच में बीच में हेड है। ये तो ऊपर देख लेते हैं, एक मिनट रुको। व्हाट आर द पॉसिबल, एक बार देख लेते हैं। एच एच एच, एच एच टी, एच एच टी, और क्या था, और क्या था, टी एच एच, और क्या है बीच में हेड, टी एच टी। ये चार आउटकम है बस, बाकी सब में नहीं है। सॉरी, टी एच टी। तो ये दिस आर द पॉसिबल फोर आउटकम्स, राइट। So you got n of c equal to 1 2 3 4। That's it। इतना ही था, वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस। बाकी दो पॉइंट विल डिस्कस लेटर इन द सेकंड सेक्शन। पहला इतना कंप्लीट कर लो, एंड लेट मी नो इफ यू गाइस फेस विथ any of the challenges, you can call me and definitely will be able to help you guys, okay।